Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are enjoying your new class. I know that you are not able to come to school because of this COVID-19, but I hope that we will meet soon in your school. But till then, we have to continue with our online classes, with our video classes, because we have no options. Children, what we were doing in online class? My body. Chapter 1, my body. Same we are doing in video class also. Children, both these classes are important, whether it is online class or your video class, because if you have any doubt, any thing that you missed in your online class, you can see that in your video class. And if anything there is there which you are not able to understand in video class, you can clear that doubt in your online class. कुछ भी ऐसा अगर वीडियो में है which you are not able to understand, कोई भी query, कोई भी doubt है that you find during your video class, you can clear that doubt during your online class. So both these classes are complementary. आपको ये दोनों classes कोशिश करनी है कि attend करें. आप वीडियो भी देखिए और online classes भी regularly attend कीजिए. Okay? Now coming to the point, children, we were doing chapter 1, that is my body. We were doing chapter 1. Here my body does not mean teacher's body or your, it is individual's body. मतलब अगर हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मतलब हम सबके इंडिविजुअल बॉडी की बात हो रही है. सब में कॉमन होती हैं चीज़ें. तो ये जो चैप्टर है ये हम सबकी बॉडी से रिलेटेड है. दो इट इज़ नॉट रिटन आर बॉडी, लेकिन माई बॉडी मतलब हम सब अपनी अपनी बॉडी के बारे में इसमें जानेंगे. ये जो चैप्टर है इसमें आपने जो अब तक पढ़ा था वो पढ़ा है इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ा है ना. उनके इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस आपने पढ़े. फिर आपने कुछ फंक्शंस एक्सटर्नल ऑर्गन्स के भी पढ़े, जो हमारे मेन जो लिम्स हैं हमारे हैंड और लेग्स के बारे में पढ़ा. देन आपने पढ़ा माउथ के फंक्शन के बारे में. हमने स्टार्ट किया था सेंस ऑर्गन, है ना. हम सेंस ऑर्गन पे पहुंचे थे. थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक जो पहले हम कर चुकी हूँ उसके बारे में बता देती हूँ. हमने पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है, आ बॉडी इज़ लाइक ए मशीन, like it has parts like any other machine has. The parts of our body are divided into two groups. One is external organ and other one is internal organ. And then we have special organs. They are called sense organs. Children, external organs are those organs which are outside body and we can see them. We can see our external parts or external organs like our head, our hands, leg, our tummy, that is belly, shoulder. All these we can see because they are outside our body. Then internal organs. Internal organs are those organs which are inside our body, and that's why we cannot see them. We cannot see our internal organs because they are inside our body, but they are equally important. They are even more important. Okay. Then we discussed about the functions of our body, different internal organs like brain, functions of brain, functions of heart, functions of lungs, functions of liver, kidney. All I had explained to you in the previous video. आपको मैंने ये सारा पिछले वीडियो में समझाया है. If you have not seen, if you have not watched those videos, please watch that. उसमें मैंने आपको ये functions समझाए हैं. Then we talked about bones and muscles. हमारी जो पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, that is made up of bones, जिसको हम बोलते हैं skeleton. मतलब हमारी जो पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, that is called skeleton. वो पूरा bones से बना है. And an adult body has 206 bones.
जो हम एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं टोटल, जो हमारा स्केलेटन है उसको मिलाकर। जो बेबी होते हैं उनमें 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं। फिर मसल्स की बात करते हैं। मसल्स, वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, and this bones and muscles together helps in the movement of our body। जो हम घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बेंड करते हैं, all the movement of our body is done by bones and muscles। जो हमारे बॉडी को जो शेप मिला है वो बोन्स और मसल से ही मिला है। बोन्स हैं, उनके साथ मसल्स अटैच्ड है, उसके ऊपर से फिर हमारा स्किन है। और ये बोन्स सिर्फ हमारी बॉडी को शेप ही नहीं देते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं विच आर वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब प्रोटेक्टेड हैं इनसाइड द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। जो स्कल है उसके अंदर हमारा ब्रेन है, जो हमारे रिब्स हैं, जो बोन केज है उसके अंदर हमारे लंग्स हैं, हमारे लिवर है, हमारा हार्ट है। ये सारे बहुत डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इन्हें अगर थोड़ा भी डैमेज होता है तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो सकती है। तो सिर्फ हमारी बॉडी का मूवमेंट ही नहीं होता बोन्स और मसल से, बट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। फिर हमने फंक्शंस की बात की थी, हैंड्स के फंक्शन की और लेग्स के फंक्शंस की। हम क्या क्या हाथ से करते हैं, क्या क्या हम पैरों से करते हैं। दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो। जो पिछले वीडियोस हैं उसमें मैंने हैंड्स के फंक्शंस को भी डिटेल में समझाया है और लेग्स के फंक्शन को भी डिटेल में उस पर डिस्कस किया है। आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। फिर हमने बात किया था फंक्शंस ऑफ माउथ की। दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। what थिंग्स वी डू विद आवर माउथ मीन्स लिप्स, टंग एंड टीथ मिलाकर। तो जो भी हम माउथ से करते हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। आई होप यू हैव सीन दोज। कमिंग टू सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की बात हम कर रहे थे। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं कितने हैं? We have 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin, है ना। आईज मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको मैं बता चुकी हूँ आईज के बारे में कि इसमें आईब्रोज, आईलिड, आईलैशेस, आई बॉल सारा मिला के हमारा आई का पोर्शन होता है। एंड दिस इज फॉर द सेंस ऑफ साइट। मतलब आईज जो है उससे हमारा कौन सा सेंस होता है? सेंस ऑफ साइट। एंड इट हेल्प्स अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करते हैं आईज। देन हमने नोज के बारे में बात की थी, सेंस ऑफ स्मेल। टू स्मेल समथिंग, मतलब हमारा जो नाक है वो अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू दोनों को पहचानता है ना। अगर कोई खाने पीने की अगर अरोमा आ रहा है वो भी हम अच्छे से, हमारा जो नोज़ है वो पहचान लेता है। कहीं पे बैड फाउल स्मेल आ रहा है उसको भी पहचान लेता है। फ्लोरल, फूलों की खुशबू को फ्लोरल स्मेल है, कोई स्पाइसी स्मेल है, मिंटी स्मेल है। ऑल दीज स्मेल्स आर आइडेंटिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर नोज़। तो नोज़ की जो पार्ट्स हैं, जो नॉस्ट्रल्स हैं, ऑल्फैक्टरी है इसके अंदर, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, है ना। जो हमारे नाक में जो म्यूकस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक हमारा थोड़ा वेट रहता है। अगर आप उंगली डालते हैं कभी नाक में, बच्चे अक्सर डालते हैं, दैट वी शुड नॉट डू।
पर वो तो नाक हमारी थोड़ी सी गीली रहती है, वाटरी रहती है। ये क्यों रहती है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, है ना। आज हम बात करेंगे ईयर्स की, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ईयर्स। तो चलिए ईयर्स पे हम बात करते हैं। लेट मी राइट दिस फर्स्ट। ओके, टोटल हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव? हमारे कितने कान होते हैं? 2 ईयर्स। इनका क्या यूज़ है? अब ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है, दैट इज आई हैव टोल्ड यू दैट ईयर्स आर वन ऑफ आर सेंस ऑर्गन। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से ये एक है। और इससे क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग, हमारी सेंस ऑफ हियरिंग होती है। लेकिन इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। थोड़ा है हमारा सेंस ऑर्गन, लेकिन क्या यूज़ है? अभी इन दिनों तो हमारे कान का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या यूज़ है कोरोना के टाइम में? मास्क। जो हम मास्क पहन रहे हैं सारा दिन, वो कहाँ पे फंसा रहे हैं? अपने ईयर्स पे। यस, हमारे कानों के ऊपर चश्मा, उसके ऊपर ये मास्क, तो कान के ऊपर तो बहुत प्रेशर है ना। लेकिन सिर्फ ये हमारा जो हम अभी जब ईयर्स की बात करेंगे तो इसमें बहुत हम ऐसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे ईयर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। द ईयर is made up of 3 different sections. Okay, the ear is made up of 3 डिफरेंट सेक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे 3 डिफरेंट सेक्शंस मतलब कौन से? हमारा जो ईयर है वो 3 डिफरेंट सेक्शन से बना है। तो ये डिफरेंट सेक्शंस कौन से हैं इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। और पहले ये जानना कि क्या करते हैं, दैट वर्क टुगेदर, that work together to collect sound and send them to brain। पहले हम इसको समझ लेते हैं। The ear is made up of 3 different sections that work together to collect sound and send them to brain। फिर से मैं आपको इसको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। The ear is made up of 3 different sections। हमारा जो कान है, या जो हमारे जो 2 कान हैं, ये किससे बने हैं? इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेक्शंस। 3 डिफरेंट सेक्शन से बने हुए हैं। और ये जो 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं, दे वर्क टुगेदर। हमारे जो कान है उसके 3 पार्ट्स हैं। ऐसे आपको बाहर से देखने में तो लगता है क्या है, 2 तो कान है, पर हमारे हर कान के, मतलब ऐसा नहीं कि एक कान की, हर जो हमारे जो कान है इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड दे वर्क टुगेदर। ये तीनों पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? दे कलेक्ट साउंड, जो भी हम सुनते हैं ना, दे कलेक्ट साउंड एंड सेंड देम टू ब्रेन, और वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। आपको मैंने जब बताया था, जब हम फंक्शंस ऑफ ब्रेन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। हम जो सुन रहे हैं, हम जो सुनते हैं वो समझते हैं, कौन सा किसकी वजह से समझते हैं? ब्रेन। हमारे जितने भी सेंसेस हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ब्रेन। मतलब
हमारा ब्रेन ही बताता है एक्चुअली में कि को अगर हम कुछ देख रहे हैं तो ब्रेन ही बताएगा कि ये क्या है, अगर कुछ सूंघ रहे हैं तो ब्रेन ही बताएगा, कुछ सुन रहे हैं तो ब्रेन ही बताएगा। ऑल आर कनेक्टेड विद ब्रेन। सेंसेस तो है हमारे, हम उससे सेंस कर लेते हैं, बट पहचानने का काम करता है ब्रेन। तो ये साउंड को कलेक्ट करते हैं, उसको ब्रेन के पास भेजते हैं, फिर ब्रेन बताता है कि ये किस चीज़ का साउंड है। ठीक है, तो देयर वर्क इज, जो 3 पार्ट्स हैं उनका काम है टू कलेक्ट साउंड एंड सेंड देम टू ब्रेन। ठीक है, साउंड को कलेक्ट करना और उसको फिर ब्रेन के पास भेजना। अब ये 3 पार्ट्स कौन से हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो आपके अभी आप ग्रेड 2 भी हो, इसलिए हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बताएंगे। द आउटर ईयर, ये जो मेरे बाहर की कान है, आउटर ईयर। फिर है द मिडिल ईयर एंड द इनर। इसको आप जब डिटेल में आपका पढ़ोगे, जब आप क्लास 3 में जाओगे, आप इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में पढ़ोगे। अंदर का जो कान का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में आप क्लास 3 में पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ नाम समझो। 3 पार्ट्स कौन से हैं? आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे ईयर के, आउटर, मिडिल एंड इनर। और ये तीनों पार्ट्स मिलकर ही साउंड को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे सेंड इट टू ब्रेन, और फिर ये ब्रेन के पास पहुंचाते हैं उस साउंड को, ताकि ब्रेन बताए कि हाँ ये कौन सा साउंड है। अच्छा, मतलब ईयर का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट एंड ट्रांसड्यूस योर साउंड टू द ब्रेन। इट ट्रांसमिट साउंड टू द ब्रेन, फिर ब्रेन बताएगा कि ये किस चीज़ का साउंड है। मतलब ये तीनों पार्ट्स मिलकर ही ये काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट करेगा। दे ट्रांसमिट द साउंड टू द ब्रेन थ्रू दीज 3 पार्ट्स। ठीक है, ये सुनने वाला तो हमको पता है कि सेंस ऑफ हियरिंग है, ईयर्स से हमारा सेंस ऑफ हियरिंग है। बट यू नो, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ईयर का। सुनना तो है, यस, वी नो हियरिंग। कैन यू गेस क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? मास्क पहनते हैं उस पर? नो। चश्मा पहनते हैं? नो। ये दोनों तो फंक्शन है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन, बैलेंसिंग द बॉडी, हम ऐसे खड़े हो पाते हैं ना प्रॉपरली, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ईयर। हमारा ईयर्स जो हैं हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे टिल्ट हो जाते, या हम सीधे नहीं खड़े हो पाते। तो बॉडी के बैलेंस में भी हमारे ईयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि बैलेंस। उसको मैं इरेज कर, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स अस इन हियरिंग एंड मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस। इट हेल्प्स अस इन हियरिंग एंड maintain our sense of balance। ठीक है, ईयर का फंक्शन एक तो हियरिंग है और दूसरा बैलेंस, बॉडी बैलेंस। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आपको पता है, जिन लोगों के कान ठीक से काम नहीं करते, जो लोग सुन नहीं पाते, उनको और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते, दे हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग ऑल्सो, स्पीच प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्योंकि अगर वो सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे?
कोई भी बच्चा बोलना कब सीखता है? जब वो सुनता है ना। छोटा बेबी जो होता है देख सब पहले लोगों की बातें सुनता है, लोगों के साउंड सुनता है, सब उसके साथ बातें करते हैं तो वो उसके कान में जाता है ना। छोटे बच्चे के साथ जब बातें करते हैं हम लोग कोई भी, तो वो हम सब की बातें सुनता है और सुनते सुनते वो चीज़ों को कैच करता है। तो जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है या जो लोग सुन नहीं पाते, जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, उनको स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, वो बोल भी नहीं पाते हैं या बहुत लेट बोलते हैं या कभी कभी तो बोल ही नहीं पाते क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। तो जो लोग डेफ होते हैं, जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है, दे हैव स्पीकिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, स्पीच प्रॉब्लम ऑल्सो। तो कान कितने इम्पोर्टेंट है, कान ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा, और हमको इसके बारे में क्या जानना है कि जिनको भी हियरिंग प्रॉब्लम होती है उसको कुछ हद तक हम ठीक भी कर सकते हैं थ्रू आवर डाइट। यस, हियरिंग प्रॉब्लम कैन बी prevented, can be yes, I can say can be prevented through our diet। आपने टीवी में ऐड वगैरह में देखा होगा, ओमेगा 3 ऐसा नाम आता है ना, वो जिस भी फूड में ओमेगा 3 होता है ना, वो खाने से हमारे कान की अगर थोड़ी सी हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेफ है तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हियरिंग प्रॉब्लम है दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आर डाइट। अगर हम अच्छी डाइट लें, ओमेगा 3 वाली डाइट लें, तो हमारी हियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, और क्या है, हमारे कान का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जो हार्डेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी का, जो सबसे हार्डेस्ट बोन होता है वो ईयर्स में होता है। आपको पता था ये बात? नहीं ना। जो उसको टेम्पोरल बोलते हैं, the hardest bone is जो हार्डेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट, वो हमारे कान में होता है, उसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। आपको नाम नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट बोन कहाँ है तो आप बता सकते हो कि वो कहाँ होता है, ईयर्स में। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट बोन है ईयर्स में। नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ये याद रहेगा ना कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट बोन कहाँ पर है, ईयर्स में, याद रहेगा। गुड। और नाम भले ना याद रहे, ऐसे मैं रिपीट करूँ, टेम्पोरल बोन उसको बोलते हैं, पर अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी आपको ये याद रहेगा कि हार्डेस्ट बोन जो है वो ईयर्स में होता है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट बोन भी ईयर में होता है। यस, द स्मॉलेस्ट bone is also in ear। हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बोन है वो भी ईयर में ही है, उसको स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड STAPES, उसको कहते हैं स्टेप्स। जो हमारे पूरे शरीर की बात कर रही हूँ मैं, पूरे बॉडी का जो सबसे छोटा बोन है वो कान में है, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स। तो देखिए, हार्डेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन दोनों ही हमारे ईयर्स में है। हार्डेस्ट बोन टेम्पोरल बोन, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, बोथ आर इन आवर ईयर्स। और ये ईयर्स जिसको हम ऐसे ही इतना ज़्यादा हमने कभी सोचा नहीं जिसके बारे में, दिस ईयर हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर बॉडी। अगर नहीं होता तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता। कान नहीं होते तो हम ठीक से बोल नहीं पाते। तो हमारे जो ईयर्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ सुनने की हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और
बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो कान है ना, दे आर ऑलवेज वर्किंग। इसको इरेज करके मैं लिख भी देती हूँ। हमारे जो ईयर्स है ना, दे आर ऑलवेज वर्किंग। अब आप सोच रहे हो कि ऑलवेज वर्किंग मतलब कैसे? हम सोते हैं, नींद में अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो तब भी कुछ गिरता है तो हम झट से उठ जाते हैं, मतलब हमारे कान जाग रहे हैं, दे आर एक्टिव। कुछ आपको ठक ठुक की आवाज़ आ रही है रात को, किसी भी तरह का साउंड आपको आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाते हो और अब आप जाग जाते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गिरी और आपको पता ही नहीं चला नींद में, ऐसा तो नहीं होता। मान लो आप सो रहे हो और किचन में कोई बर्तन ही गिर गया, चूहे ने जाके बर्तन गिरा दिया, आवाज़ आती है और आप उठ जाते हो, यानी आपके कान वर्किंग है, उस वक्त भी काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। ईयर्स आर ऑलवेज वर्किंग इवन इफ वी आर इन स्लीप। अगर हम सो भी रहे हैं तब भी हमारे काम जो है, हमारे जो ईयर्स हैं, दे आर वर्किंग। ठीक है। और आपको क्या बताना है, मुझे एक चीज़ और बताना है कि एक वैक्स जो होता है कान में, जो कान में वैक्स होता है, जो मैल जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट मैल, इट इज़ नॉट समथिंग डर्टी, इट इज़ कॉल्ड वैक्स। और ये बेकार नहीं होता है। ये क्यों होता है? वैक्स इज नेचुरल प्रोटेक्टिव जो वैक्स होता है कान में, उसके लिए साइंस में वर्ड है, लेकिन वो वर्ड आपको जानना वैसे ज़रूरी नहीं है। उसको सेरोमेन बोलते हैं वैसे, CERUMEN, वो जानना आपको ज़रूरी नहीं है। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब आप उसको पढ़ना, सेरोमेन। अब ये सिर्फ वैक्स समझो, कान में जो वैसे निकलता है, वैक्स इज एक्चुअली नेचुरल प्रोटेक्टिव एजेंट। ये हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई कीड़ा वीड़ा कान में सोते में घुस जाए तो हमें पता चल जाए। वैक्स रहेगा ना तो हमें से खुजली होने लगती है और हम ऐसे ऐसे कान करने लगते हैं, तो या कोई चीज़, बाहरी चीज़ हमारे कान में घुस ना जाए, तो उससे हम बचत हो, चाहे वो डर्ट हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। तो जो वैक्स है, इसको हमें पूरे टाइम खोदते नहीं रहना चाहिए अपने कान को। क्यों? क्योंकि वो वैक्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो कान में बिना कुछ सोचे समझे कोई भी ऑयल कुछ भी नहीं डालना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं ना कि खुजली हुई और कुछ डाल देते हैं बिना डॉक्टर की से कंसल्ट किए, ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग को आदत होती है सेफ्टी पिन कान में डाल देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं हेयर पिन कान में डालते हैं, विच इज़ अगेन वेरी डेंजरस। डू नॉट डू दिस एवर, कभी भी ये नहीं करना है। कान में आप कोई भी सींग, कोई भी हेयर पिन, कोई भी सेफ्टी पिन आप नहीं डालोगे। कान में अगर बहुत ईचिंग हो रही है, वी हैव ईयरबड्स, सॉफ्ट ईयरबड्स होते हैं, वो यूज़ करना चाहिए, वो कान को डैमेज नहीं करेंगे। पहले तो कान में ज़्यादा कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पर अगर बहुत परेशानी हो रही है तो ईयरबड्स से आप जो एक्स्ट्रा वैक्स हो जाता है उसको निकाल देना चाहिए। और अगेन यू विल नॉट डू इट योर सेल्फ, आप खुद से नहीं करोगे, एडल्ट करेंगे। और अगर कान में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कंसल्ट सम डॉक्टर जो ENT होते हैं, जो कानों के जो स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। सेंस तो है ये, हियरिंग का सेंस तो है ये, बट जैसा मैंने आपको बताया हमारी बॉडी की बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है। और ये जो है कान हमारे स्पीच के लिए भी ज़रूरी है कि अगर सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो क्योंकि ये कितना इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, वी शुड नॉट do anything that can damage it. So take care of your sense organs, all sense organs,
और अभी क्योंकि आज हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा तो मैं बोलूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर ईयर्स। उसको साफ रखना है लेकिन खोदते नहीं रहना है, और बहुत लाउड साउंड में कुछ नहीं सुनना है। म्यूज़िक ईयरफोन लगा के, कुछ लोग बहुत तेज़ साउंड में गाना सुनते हैं या ईयरफोन लगा के बहुत तेज़ किसी साउंड को सुनते हैं, विच इज़ अगेन वेरी डेंजरस फॉर ईयर्स। उससे जो ईयर ड्रम है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो लाउड नॉइस नहीं सुनना है ईयरफोन लगाकर या कैसे भी। कान में बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं लगाना है। बाहर जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बाहर जाते हो तो पुट सम कॉटन डाल लो कान में। जो नॉइज़ पोल्यूशन कैन ऑल्सो डैमेज योर ईयर्स। जो नॉइज़ जो शोर होता है बाहर, उससे भी हमारे कान को नुकसान हो सकता है। तो बाहर जाते समय कान में रुई लगा सकते हैं ताकि नॉइज़ पोल्यूशन से हमारे जो ईयर्स है उसको नुकसान ना हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है ईयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टंग। ठीक है, आज की वीडियो पे यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।